देख रहे हैं पीबी न्यूज और अब खबरें विस्तार से। नाबालिग छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर द्वारा अश्लीलता किए जाने के बाद अंडाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी शिक्षक आनंदमय मंडल की बेटी का दावा है कि उसके पिता को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा ग्राम मंडलपाड़ा में ट्यूशन शिक्षक पर अपने ही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। घटना के बाद काजोड़ा गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। छात्रा के परिजनों ने अंडाल थाना पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस घटना के संबंध में ट्यूशन छात्रा की मां ने बताया कि काजोड़ा गाँव के एक बुजुर्ग ट्यूशन शिक्षक आनंदमय मंडल ने गाँव के अंदर ही एक घर लेकर कुछ लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसमें मेरी भी बेटी पढ़ती थी। बुधवार सुबह सभी बच्चियों को लेकर जब वो ट्यूशन पढ़ा रहा था और पढ़ाई खत्म हुई तो सभी लड़कियों की छुट्टी कर दी, लेकिन मेरी बेटी को गणित बताने के बहाने रोक लिया और जब सभी बच्चे चले गए तब मेरी बेटी के साथ अश्लीलता की। मेरी बेटी रोते हुए घर आई और घटना की सारी जानकारी मुझे दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय माकपा नेताओं को मैंने बताया। माकपा नेता प्रबीर मंडल ने इस घटना की जानकारी अंडाल थाना पुलिस को दी। इस संबंध में स्थानीय काजोड़ा गांव के उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। इधर आरोपी शिक्षक की बेटी स्नेहा मंडल का कहना है कि मेरे पिता को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। इसके पीछे गांव के ही कुछ राजनीतिक नेता शामिल हैं। কি হয়েছে? আমি জানি না, আমাদের সেরকম ভাবে আমি কিছুই জানি না বলতে গেলে। আচ্ছা, বাবার বিরুদ্ধে এগুলো উল্টো পাল্টা কথা বলা হয়েছে। এগুলো পাড়ার লোকের অনেক শত্রুতা আছে। আগেরবারও অনেক এরকম কেস হয়েছিল। আগেরবার কেস হয়েছিল? আগেরবার কেস হয়েছে বলতে বাবাকে মারাটি অনেক ওরা করেছিল। আবার তখন ওরা শত্রুতা ছিল পার্টির সাথে, তার জন্য ওরা এরকম উল্টো পাল্টা বলে বলে আবার নিয়ে গেল। বাবা কি পার্টি করে? বাবা কি পার্টি করে? বাবা টিউশনই করে। কোন পার্টি করে বাবা তোমার? বাবা আগে সিপিএম করতো, তখনও সে ওদেরকে এরকম মানে ওই দুয়ে করে অনেক কিছু বলে বলে তারপর বাবাকে তখন নিয়ে গেছিল উল্টো পাল্টা বলে, আবার এখন উল্টো পাল্টা বলে পরে আবার নিয়ে গেল। বাবা এখন কি পার্টি করে? এখন বাবা কোন পার্টি করে? বাবা এখন তৃণমূলে আছে। তৃণমূল লোক কিনে হেল্প করছে না? এখন তৃণমূল লোক কেউ আসছে না এখন? হ্যাঁ বলছে তো ওরা করবো, কিন্তু কি করবে আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা দেখুন। তোমার নাম কি? নাম স্নেহা মণ্ডল। তুমি কি করো? আমি টিউশন করি। টিউশন পড়ো? হ্যাঁ, মানে আমি স্টুডেন্ট। তোমার মা আছে তো? আচ্ছা, মা আছে, মা তো গেল ওদেরকে একটু বলতে যে কোনো যদি ব্যবস্থা হয়। আচ্ছা, তো টিউশনি পড়তে তুমি টিউশনি পড়ো? না, মানে আমি স্টুডেন্ট, আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোথা থেকে পাস করেছো? এই রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ থেকে। বাবার নাম? বাবার নাম আনন্দময় মণ্ডল। তোমার? আমার স্নেহা মণ্ডল। কি হয়েছে ঘটনাটা বলবেন তো? এ হচ্ছে আমার শালের মেয়ে বৃষ্টি মণ্ডল। সকালে আনন্দ মণ্ডলের কাছে যায় পড়াশুনো করার জন্য। পড়াশুনো হয়ে যায়, পড়াশুনো হওয়ার পর মোটামুটি সব ছাত্রছাত্রীকে ছেড়ে দেয়। একে রেখে দিয়েছিল। একে রেখে দেওয়ার পর যে দুটো প্যান্ট খুলেছে, প্যান্ট খুলে লিঙ্গটায় আপনার জিভ দিয়ে চেটে, একটি ভয় দেখাবার নিয়ম। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ চাই। এর যেমন শাস্তি হয় মাস্টার, হ্যাঁ এই মাস্টারের যেমন আনন্দ মণ্ডলের শাস্তি হয়। কখন পড়তে এসেছিল মেয়ে? 8টায় পড়তে গিয়েছিল, এসেছে 10টায়। তারপর জানলে কি করে? আমরা মেয়েটা এসে পরে কাঁদছিল। আমি এখানে তখন বসে, আমি ছিলাম, শ্বশুরমশাই ছিল, আমরা দুজনে বসেছিলাম। আমি তখন ও এসে মেয়েটা বললো ওর মাকে, মা একটা কথা বলবো। তা আমি বললাম যে বেটা দেখো তোমার মা একটা শখ হয়েছে, এখন এই সকল কথা বলো না, তুমি যা বলার আমাকে বলো। আমি রয়েছি, মেজমেজা আছে, কাকারা আছে, চঞ্চলকা আসা যাওয়া করে। তারপর মেয়েটা আমার কাছে লজ্জায় বললো না। আমি জাস্ট যে পরে ঘরে এক গ্লাস জল খেয়েছি, তা করতে করতে আবার ফের ফোন যায়। ফোন যাওয়ার পর আমার ওয়াইফ ধরে। ওয়াইফ ডিটেলস ঘটনাটা শোনার পর আমাকে যায়। আমি তো মাস্টারদের কাছে বুঝোবুঝি করলাম, নেতাদের কাছে গেলাম কি করা দরকার। নেতারা তখন বললো যে দেখো তোমার ব্যাপার করো, আমরা এসে করে কিছু যা করার করেছি, দিলাম। এফআইআর হয়েছে? এফআইআর করতে চললাম আমরা। আপনার পরিচয়? আপনার নাম? আমার নাম উত্তম কুমার শর্মা।
अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ड्यूटी के दौरान पिता की हुई मौत के बाद जामबाद कोलियरी में कार्य कर रहे दिनेश कोयरी को पिछले 14 महीने से ना तो वेतन मिला है, ना ही मैन नंबर। इसके साथ ही उसकी मां को फैमिली पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है। नतीजा, मजबूर होकर बुधवार दोनों मां बेटे प्रबंधक कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलियरी में मृत श्रमिक रामकृष्ण मोची की विधवा और बेटा नौकरी की मांग पर कोलियरी स्थित प्रबंधक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। उनके इस आंदोलन का समर्थन सीएमएस एटक और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन संघ ने भी किया। 2 घंटे के बाद एटक एरिया सचिव गुरुदास चक्रवर्ती, शाखा सचिव दिलीप दास मानिकपुरी के साथ कोलियरी प्रबंधक स्वरूप कुमार दे और कार्मिक प्रबंधक मौमिता जवारदार ने बैठक कर करार किया कि महाप्रबंधक के काजोड़ा आने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही दिसंबर तक अन्य बकाया सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन देने के बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। इस संबंध में मृत श्रमिक रामकृष्ण मोची के बेटे दिनेश कोयरी ने बताया कि मेरे पिता जामबाद कोलियरी के पंखा घर में ड्यूटी कर रहे थे। विगत 10 सितंबर 2020 को सुबह करीबन 5 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ने से रामकृष्ण मोची की पंखा घर में ड्यूटी करने के दौरान ही मौत हो गई। उसके बाद पिता के बदले मुझे नौकरी मिली, ज्वाइनिंग पत्र दिया गया। तब से लेकर 14 महीने से मैं कोलियरी में ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन अब तक तनख्वाह तो दूर, मेरा मैन नंबर भी नहीं आया और ना ही स्थायी नियुक्ति पत्र ही मिला है। यहाँ तक कि मेरी मां रति देवी को फैमिली पेंशन भी नहीं मिला। लगातार प्रबंधन से मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अंत में प्रबंधन को एक नोटिस देकर 1 दिसंबर से मां और मैं मैनेजर ऑफिस के पास भूख हड़ताल पर बैठकर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। बैठे हैं, मेरा 15 बहुत दिन हो गया, 15 महीना लगभग ज्वाइन हुए यहाँ पर। ऑफिस से यहाँ से ऑफिस से दिया था ऑफिस ऑर्डर ड्यूटी करने के लिए, और मैंने हेडक्वार्टर और यहाँ से एरिया से मेरा ज्वाइन लेटर नहीं आया अभी तक, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं जामबाद कोलियरी। मैनेजमेंट सिर्फ बोल रहा है हो जाएगा अगला हफ्ता ऐसे करके सिर्फ डेट बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पर अभी तो कोई पूछताछ नहीं किया हम लोग बैठे हैं। कब तक बैठिएगा? जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर और बहुत मैंने अपॉइंटमेंट लेटर जब तक नहीं आएगा। बहुत दिन हो गया, वो लोग नहीं दे रहा, डेट बढ़ाते जा रहा है। लगभग 14-15 महीना हो गया। मेरे पिताजी का यहाँ पर देहांत हुआ था, ऑन ड्यूटी में देहांत हुआ था, तो लगभग 10/9/2020 को हुआ था। 10/9/2020 को देहांत हुआ था। 15 तारीख को ज्वाइनिंग दिया था। उसके बाद हम लोग उस दिन से हम ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद इतना दिन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहा है हम को, बस डेट बढ़ाते जा रहा है। मैनेजमेंट और मैडम PM मैडम लेबर ऑफिसर सब डेट बढ़ाते जा रहा है बस। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कोयरी। इस दौरान उनके समर्थन में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन संघ के महासचिव जमालुद्दीन मियां, शाखा सचिव अमरेश कुमार राय, राष्ट्रीय आदिवासी एकता के उपाध्यक्ष चांदू राम जी ने भी अपना सहयोग देकर धरना प्रदर्शन में बैठे। उसके बाद कोलियरी प्रबंधक स्वरूप कुमार दे ने भूख हड़ताल में बैठे परिजनों के पास आकर समझाया और आंदोलन को समाप्त करवाया। 15 महीना से वेतन भी नहीं मिला, इसका माँ को पेंशन भी नहीं मिला, फैमिली पेंशन। इसके लिए क्या हुआ? देखो, इसको ऊपर बहुत सा जुल्म हुआ। रामकृष्ण मोची ऑन ड्यूटी एक्सपायर किया था, उसके बाद इसको सब मैनेजमेंट के साथ एक ऑल ट्रेड यूनियन के साथ मैनेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का मुताबिक इसको एम्प्लॉयमेंट भी मिला। 15/9/2020 में ज्वाइन किया। उसका बाद से जितना प्रोसीड्योर था, जितना पेपर मांगा गया था, सब फुलफिल करने के बाद भी इसको एडक एम्प्लॉयमेंट को अप्रूवल नहीं आ रहा था। कारण क्या था? कारण मैनेजमेंट का नेग्लिजेंसी, हेडक्वार्टर्स का नेग्लिजेंसी। उसका बाद हम लोग बोलते बोलते थक गया, बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बार बोला। इसका बाद भी कुछ हुआ नहीं। 15 महीने से वो अपना फिजिकल अटेंडेंस कर रहा है, अंडरग्राउंड में जॉब कर रहा है,
सब कुछ करने के बाद भी इसको कुछ बेनिफिट मिला नहीं। तो हम लोग लास्ट में डिसीजन वो लिया कि हम 15 महीना काम किए, उसका बारे में हमको एक भी पैसा मिला नहीं, मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं। तो जाके वो अपना फैमिली लेके यहाँ पर भूख हड़ताल को लाया। और हमारा ट्रेड यूनियन के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि आंदोलनकारी के पास में रहना, और इसी में हम लोग फुल सपोर्ट उसको दिए। अब क्या डिसीजन हुआ अभी? डिसीजन ये हुआ कि हेडक्वार्टर कल हंगर स्ट्राइक नोटिस आज से बैठने का बाद था, नोटिस मिलने के बाद ही, बैनर टंगाने के बाद ही हेडक्वार्टर्स तुरंत कल सामने उसका अप्रूवल कर दिए। जो 15 महीने में हुआ नहीं, 15 मिनट में हो गया, उसका अप्रूवल आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे रहा है कंपनी। ऑल ड्यूज जो था तो अभी मैनेजर और डिप्टी पीएम से बात हुआ, हमारे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फुलेरी का भी था, और वो लोग बोला कि हम सब जो उसको लीगल ड्यूज़ है, पीएफ उसको मिल गया, पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ, बोला कि हम लोग 3 महीना में चालू करा देगा, ग्रेचुटी मिल गया। बाद बाकी जो ड्यूज़ है लीगल केसमेंट और बाद बाकी जो उसको वेतन का साथ रेगुलेशन का बाद जो मिलना चाहिए ऑल अलाउंस का साथ, छुट्टी का साथ, सब कुछ बोला कि दिसंबर पेड इन जनवरी इस महीने में हम पेमेंट करा देंगे। और सब विश्वास के साथ लिखित एग्रीमेंट भी हुआ। इसी विश्वास के साथ हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद है कि लोकल मैनेजमेंट इसको अपना जो कमिटमेंट है फुलफिल करेंगे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बुधवार बांकुड़ा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में फैली गंदगी को गाड़ी में भरकर दूसरे स्थान पर फेंका जा रहा है। ये सारा कार्यक्रम स्वयंवर गुट की महिलाएं कर रही है, जिसका शुभारंभ प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने किया। बुधवार पायलट प्रोजेक्ट की बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने घोषणा की। बांकुड़ा शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम की तरफ से ये कदम उठाया गया। बांकुड़ा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अक्सर ही जहां तहां गंदगी का अंबार देखा जाता था, जिसकी वजह से पूरा इलाका गंदगी से भर उठा था। इसके साथ ही आने जाने वाले राहगीरों को भी गंदगी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को देखकर बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से विभिन्न वार्ड से गंदगी को इकट्ठा कर पायलट प्रोजेक्ट की गाड़ी में भरकर दूसरे जगह फेंका जा रहा है। स्वयंवर गुट की महिला गाड़ी लेकर नगर निगम के विभिन्न वार्ड में घूमकर गंदगी को इकट्ठा करती है और एक निर्दिष्ट जगह पर उसे फेंकती है। आज के इस पायलट प्रोजेक्ट में बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार घर घर जाकर आम लोगों से बातचीत की। इस तरह के प्रोजेक्ट से लोगों में खुशी भी दिखाई पड़ी। দেখুন, আমরা শুধু ভোট এলে কাজ করি এটা নয়, বিরোধীরা অনেক রকম অনেক কথাই বলে, কিন্তু আমরা সারা বছর ধরে আমরা মানুষের কাজ করে আসি, সারা বছর ধরে আমরা মানুষের পাশে থাকি, কাজও করি। তো এটা একটা রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের এটা মানে একটা পরিকল্পনা, একটা পরিকাঠামোর গতভাবে আমাদের ত্রুটি ছিল। যাই হোক, আমরা বসার পরে এটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং এই উদ্যোগটাকে আজকে তার শুভ সূচনা করলাম এবং এই 2 নম্বর ওয়ার্ডের শুভ সূচনা করলাম এবং এরপরে যে বাকি যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোও আমরা কাজ শুরু করব। কিভাবে নজরদারি রাখবেন এটা? আমরা ঠিক বাঁকুড়া পৌরসভা যেভাবে নজর করছি সেই মতো নজরদারি করব এবং আমরা বাঁকুড়ার বাসীর কাছে একটা আবেদন করব, বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আসুন আমরা সবাই মিলে বাঁকুড়া শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। এটা যেটা আবর্জনা হলো আমাদের পৌরবাসীরা এখানে সেখানে ফেলে রাখতো। আজ 2 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের অঙ্গ হিসাবে আমাদের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলো 2 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে অনুরোধ জানালাম, আমার সাথে চেয়ারম্যান ম্যাডামও ছিলেন, যে আমাদের অলরেডি আগেই 2টো বালতি দেওয়া হয়েছিল, একটা সবুজ বালতি আর একটা হচ্ছে নীল বালতি। সবুজ বালতিতে অপচনশীল বস্তুগুলো বাড়িতে ফেলার জন্য অনুরোধ জানানো হলো এবং নীল বালতিতে যে জৈব বস্তু সেগুলো ফেলবে এবং আমাদের যারা স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত মহিলা আছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর, তারা বাড়িতে গিয়ে সেই বালতির ময়লা কালেকশন করবে এবং আমাদের যে হাটগাড়ি আছে সেই হাটগাড়িতেও আমরা 8টা অমনি বালতি আছে, ওই বালতির মধ্যে ফেলবে এবং সেই টেম্পু আবার সেই এই গার্বেজগুলো নিয়ে বড় গাড়িতে ফেলবে এবং বড় গাড়ি আমাদের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে ময়লা ফেলে আসবে। এর ফলে কি পৌরসভায় যে জঞ্জাল মুক্ত সেটা কি হবে বলে মনে হয়? এর ফলে শুধু একা পৌরসভার পক্ষে পৌর শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করা যায় না,
মানুষকে সচেতন হতে হবে। আমরা মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিচ্ছি। আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে যে বালতি আছে সেই বালতির মধ্যেই আপনারা ময়লা ফেলুন, এখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না, এটা আমরা মানুষজনকে বলছি। মানুষজন যদি সচেতন হয় এবং আমাদের সাহায্য করে তাহলে আশা করি বাঁকুড়া শহরকে আমরা একটা জঞ্জালমুক্ত সুন্দর শহর হিসাবে উপহার দিতে পারবো। বিরোধীরা বলছে এটা ভোটের রাজনীতি, তাই ভোটের আগেই এই সব করছে, আগে তো এইসব কিছু করেনি পৌরসভা, এখন এটা লোক দেখাতে এইসব। বিরোধীদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো, ওরা কোনো উন্নয়ন দেখতে পায় না। আমার তো মনে হয় ওদের স্থানীয় অপারেশন করা দরকার। বাঁকুড়া শহর সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু ওরা চোখে দেখে না। ওরা সবসময় রাজনীতির গন্ধ খোঁজে এবং সবসময় ভোট রাজনীতি করে ওরা, এবং ওরা শুধু ভোট পাখির মতন, ওরা শুধু ভোটের সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অন্য সময় ওরা মানুষ দেখতে পায় না। ফার্স্ট ক্লাস। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तीसरे संस्करण के तहत स्वस्थ भारत विद्यालय सप्ताह को रानीगंज के डीएवी स्कूल में 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मनाने का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें बुधवार पहले दिन एरोबिक डांस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उत्सव के अंतर्गत इसके तीसरे संस्करण के रूप में स्वस्थ भारत विद्यालय सप्ताह के महत्व को दर्शाते हुए RLJDMC DAV पब्लिक स्कूल रानीगंज में 1 दिसंबर 2021 से लेकर 6 दिसंबर 2021 तक इसे मनाने की परिकल्पना की है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन विद्यालय परिसर में एरोबिक डांस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवम श्रेणी से द्वादश श्रेणी तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की सूचना करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचारिता चटर्जी ने बच्चों को फिट रहने की आवश्यकता पर अपनी विचार पेश की। इस महामारी के बाद स्कूल में छात्र छात्राओं को नई तरीके से फिटनेस की आदत डालने के लिए मार्ग प्रदान करने की योजना है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में वाजिर, साहिनूर, सारिका, पिंटू सभी उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT,
Euroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर बुधवार दुर्गापुर के 34 नंबर वार्ड कादा रोड यौनपल्ली इलाके से दुर्बर महिला समिति की तरफ से एक रैली निकाली गई। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जो व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हुई है उनकी शोक मनाना। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा भी गैर सरकारी संगठन दुनिया भर में एड्स की रोकथाम को लेकर मोहल्ले और कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाती है, जिसके तहत ही आज दुर्गापुर के 34 नंबर वार्ड कादा रोड यौनपल्ली इलाके में दुर्बर महिला समिति की ओर से यौन कर्मियों को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली दुर्गा महिला समिति के समक्ष से निकाली गई, जो पूरे इलाके में परिक्रमा कर अपने गंतव्य स्थान पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के नेता तरुण राय, इलाके के तृणमूल नेता लाल बाबू प्रसाद, राजू घोष के अलावा दुर्गा महिला समिति के अध्यक्ष रेहाना बीबी, यौन कर्मी जोशना बसु सहित इलाके के यौन कर्मी भी मौजूद थी। तरुण राय ने बताया कि दुर्बर महिला समिति की ओर से हर वर्ष ही जागरूकता रैली निकाली जाती है, जहां लोगों को HIV के बारे में बताया जाता है और आज के दिन चिकित्सक इलाके में आकर यौन कर्मियों को HIV के बारे में जागरूक करते हैं। मगर कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सकों के द्वारा प्रोग्राम नहीं किया गया है। तरुण राय ने आगे बताया कि महिला दुर्बर समिति HIV को लेकर इलाके में अपना कार्य कर रही है और घूम घूम कर महिलाओं को इसकी जानकारी दे रही है। এই কর্মসূচি নিয়ে থাকে মানুষকে সচেতন করে। কোভিডের
সময় চলছে, কোভিডের আওতা থেকে আমরা কেউ বেরোতে পারিনি। তাই প্রশাসনিক নিয়ম নীতি মেনে দুর্বারও ছোট সংখ্যা হলেও মানুষকে সচেতন করা। আমরা লিফলেটের মাধ্যমে যেমন করোনার জন্য সচেতন করছি, তেমনি এই মারণ রোগ এডস থেকে সচেতন থাকার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুর্বারের পক্ষ থেকে আমরা আজকে র্যালির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के सोनामुखी से भाजपा विधायक दिवाकर घोरामी के घोषणा के बाद सुमति मानाचार में बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान भाजपा विधायक ने इसका जायजा भी लिया। बांकुड़ा के सोनामुखी से भाजपा विधायक दिवाकर घोरामी द्वारा निर्वाचन के दौरान अपने दिए गए आश्वासन का लिहाज रखते हुए सोनामुखी के सुमति मानाचर में बांध निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया। इतने दिनों तक बांध न होने के कारण बरसात के समय काफी परेशानी होती थी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। निर्वाचन के दौरान सोनामुखी से भाजपा उम्मीदवार रहे श्री घोरामी द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि जीतने के बाद बांध का निर्माण करवाया जाएगा। आज उसी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। डीवीसी के अधिकारियों को लेकर बांध निर्माण का उन्होंने जायजा भी लिया। विधायक द्वारा बांध निर्माण के बाद लोगों से बातचीत की गई, जिससे लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।